Hello everyone, I welcome you all in today's class. Okay, so as we have finished question number 4 in the previous class and I have given you question 5th in homework, fine. बट एक स्टूडेंट है जिसको क्वेश्चन 4th में डाउट है, क्वेश्चन 5th में भी डाउट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 4th और 5th भी सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग योर क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is in which term of an AP 3, 8, 13, 18, this is AP 3, 8, 13, 18, okay. Is 17, okay. This is the AP given for us, fine. 3, 8, 13 and so on till 78. We need to find out that if 78 is the term of this given AP, then what is the number of this term है. this 11th term है, 10th term है, okay, 100th term, कोई मतलब जो भी उसका पर्टिकुलर प्लेस है वो प्लेस मीन्स n हमको यहाँ फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ. क्वेश्चन क्या था, इफ दिस इज द AP, okay, then in this AP we need to find out that this term 78, which is we can suppose this is the nth term, so what is the value of n over here. Okay, understood. So as I told you that in such kind of questions we are first of all we are supposed to write given. So a equals to given 3, d can find out है ना. तो d कैसे फाइंड आउट करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स का आप जो है डिफरेंस निकालना है. सपोज आई कैन राइट over here, so d is 5, okay. This is what, this is an equals to 78. So three things are given, a equals to 3, d equals to 5 and an equals to 78. Okay, these three things are given. Now we have only one formula to put up or to use. So an equals to a plus n minus 1 into d. You can put up the values over here. An is 78, so write down 78 equals to a is 3 plus n, we don't know, n will be as it is, into 5. Transpose this to LHS. Okay, fine. Now 75 and this 5 will be transposed to LHS like this. Understood? क्या किया हमने सबसे पहले? Okay, sorry. We will transpose 3 to left hand side, okay, so it will become 75 and this 5 if you transpose to LHS it will be in divide 75 by 5, it will be 1 5 and n equals to 15 plus 1 and n will be 16. That means this is A16, okay. This is your 16th term. Got it? ठीक है, इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए. The question is which term of an AP, okay, this is the AP given, which term of an AP is 78. ठीक है, ये कौन सी टर्म है, सिंपल सा क्वेश्चन में ही पूछ रहा है ना आपसे, कौन सी टर्म है. टर्म गिवन है लेकिन उसका प्लेस पूछ रहा है. ठीक है, तो प्लेस आपको निकालना है, दैट मींस n फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला हमने पुट अप किया, जो गिवन था वो हमने लिखा और जैसे लिखा उसके बाद हमने ये धीरे धीरे जो है सारी वैल्यूज पुट अप की और पुट करने के बाद यू ट्रांसपोज एंड देन फर्दर यू विल गेट द वैल्यू दैट इज n इक्वल्स टू 16. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. Question number 5 is find the number of terms, okay, in the following AP. अब आपको क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन 4th और 5th में कोई डिफरेंस है? I don't think so, कोई डिफरेंस है. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4th में भी आपको n फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर 5th में भी आपको n फाइंड आउट करना है. सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो गिवन टर्म है इट इज द लास्ट टर्म. ओके, ये जो है आपको गिवन टर्म ये क्या है, लास्ट टर्म है, मींस यू कैन टेक इट एज ए लास्ट टर्म. फाइन, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट दी एन ओवर हियर, और नहीं तो आप इसको ए एन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
फर्स्ट पार्ट देखें, लेट मी राइट. Okay, this is question 5. Two parts are there. First part is 7, 13, 19 till 205. It's 18, 15 and half. Okay, 13 till minus 47. This is question. Now, if we solve the first part, so write down given. Given आपको A 7 D. D कितना होगा? 13 minus 7, that means 6. And this is an equals to 205. ठीक है, अब इसको आप एल भी लिख सकते हो, लेकिन एन हम इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि ये nth टर्म है. ठीक है, ये nth टर्म है वेयर वी डोंट नो n. ओके, सो यूज द फॉर्मूला an इक्वल्स टू a plus n minus 1 into b. As I told you that for learning formula, this is the only way to write the formula again and again. Okay, so put a value 205 equals to 7 plus n minus 1 d is 6. If you transpose this, so 205 minus 7 equals to n minus 1 into 6. Okay, if you just 198, okay, subtract this. 205 minus 7 equals to 198. n minus 1 into 6. Fine. If you divide this, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 33 है ना. 6 3 18, then remain 1. 6 3 18, 33 equals to n minus 1, and n will be equals to 34. That means this is A34. Okay, or you can write the 205 is 34th term of the given AP. ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है बाय द डिफरेंस ऑफ 6, एंड दिस 205 विल गेट इफ वी ऐड the same difference 34 times. Okay, or for the 34 term. Understood? Next, on to the second part. Okay, so write down given A equals to 18, D. ठीक है, अब D कैसे निकालेंगे? हम ये इसको लिख सकते हैं 15 and half को हम लिख सकते हैं 31/2 minus 18. ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इनमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए. Then further this can be written as 31 minus 36/2, and it will be your minus 5/2. ये आपका डिफरेंस निकल के आया minus 5/2. And one more thing, an. ठीक है, an आपको दिया हुआ है -47. And you can see this clearly that this AP is in decreasing order, है ना. ये जो आपको AP दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो सीधी सी बात है कि आपको जो nth टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको नेगेटिव ही मिलेगा. ओके, यहाँ पर भी हमको n फाइंड आउट करना है. ओके, हम जस्ट सब्ट्रैक्ट रबिंग दिस, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं -5/2 -5/2. use formula A equals to A plus n minus 1 into B. So minus 47 equals to 18 plus n we don't know. B is minus 5/2. Transpose this. So minus 47 minus 18 equals to n minus 1 minus 5/2. याद रहे नेगेटिव साइन नहीं छोड़ देना है ना.
तो कई बच्चे जो है साइन भूल जाते हैं लिखना। यह आपका कितना हो जाएगा 65 माइनस का है ना, -65 ओके, n इक्वल्स टू n-1 इंटू -5/2। अभी देखो आप यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो 2 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और -5 जो आपका मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप सीधी से बोलो तो यहाँ आके रेसिप्रोकल हो जाना इसको, ठीक है। तो -65 इंटू वी कैन राइट -2/5। आप पूछोगे कि ये माइनस नीचे क्यों नहीं गया 5 के साथ, तो बेटा नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता। ओके, दिस इज द रूल कि नेगेटिव साइन अगर दो है तो कैंसिल हो जाने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की, बट इफ इट इज वन, ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक ही जगह पे जो है नेगेटिव साइन दिया है तो वो कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं आता है, ठीक है, वो हमेशा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। ये आपका कैंसिल हुआ, इक्वल्स टू n-1 will be 13 times it get cancelled. Okay, so 13 into 2 equals to n-1, it's 26 equals to n-1, और इसको अगर आप ट्रांसपोज कर देते हो तो n equals to we will get 27, that means this is A27। clear? Fine, once again I am explaining। A is given 18, okay, B आप किसी को इनको माइनस करोगे तो मिलेगा आपको -5/2 and this is what an we have written। Now we have the formula that an equals to a plus n-1 into b, whatever we have, okay, as I told you any three values will be given for us, so just put up the values and जो आपको नहीं दिया उसको as it is लिखना है, ठीक है। After putting the value just transpose this and as I told you don't leave the sign, है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको साइन पर फोकस करना पड़ेगा, दो जगह पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये साइन भूल जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो transpose this and you can solve it further and you will find the answer that the given term is 27th term। okay, this is your this is all about your question number 5। next is question 6। your question 6 is, अच्छा क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने से पहले एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हमने जैसे कॉमन डिफरेंस को ऑब्जर्व किया है ना, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, ठीक है, ये चीज़ हमको समझ आया दैट कॉमन डिफरेंस बी जिसकी बात हुई है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब एक ए जो आपको फर्स्ट टर्म है वो भी कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कोई वेल नोन तो है नहीं कि हमें वही लेना है, तो कोई भी अपने मन से हम ले सकते हैं, वो भी डिवीजन हो सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एन, ठीक है, अब अगर हम एन के बारे में बात करें तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए, ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ के दो पार्ट के 3 क्वेश्चन कर लिए, तो उसमें आपको एन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ये डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो, या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, इन सारी चीजों में एन के बारे में आप क्या बोलोगे, क्या कभी एन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, ठीक है। तो सोचो एन माने क्या है, प्लेस है ना, प्लेस की बात हो रही है कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो क्या प्लेस कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो एन कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, देन नेक्स्ट, क्या एन फ्रैक्शन में हो सकता है, तो ऐसा आपने कभी सुना है कि हम जो है 3/2 प्लेस पर आए, ठीक है, रैंक हमारे 3/2 आए, कभी नहीं होता है ना, ये पोजीशन कभी नहीं होती है। तो आप कभी भी जो एन है मीन्स जो हम प्लेस डिनोट कर रहे हैं, सो एन कैन नॉट बी नेगेटिव, एन कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, जीरो पोजीशन कोई नहीं होती, ठीक है, एन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है, मतलब ना ये फ्रैक्शन में होगा, ना ये जीरो होगा और ना ही ये नेगेटिव होगा। दैट मीन्स वी कैन इजीली से दैट एन कैन बी ओनली एनी नेचुरल नंबर, एन जो है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, ठीक है, जीरो आ रही है या नेगेटिव आ रही है या फ्रैक्शन में आ रही है, दैट मीन्स इट इज क्लियर कि वो आपकी एपी में कुछ प्रॉब्लम है, वो टर्म आपके पास नहीं होगा, ठीक है। और यही कंसेप्ट आपके क्वेश्चन नंबर 6। Question 6 is, check whether -150 is a term of AP 11, 8, 5 and 2. Okay, so I'm writing AP. AP is 11. What?
11,852 फाइन एंड इट इज गिवन दैट हमको चेक करना है ना, तो यहाँ पे आई एम राइटिंग इन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो, ठीक है, इसको हमने एन कंसीडर कर लिया कि ये कोई जो है एक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि चेक लिखा है, चेक मीन्स व्हाट, इट कैन बी द वैल्यू, इट कैन नॉट बी द वैल्यू, फाइन, तो हमने इसको भी क्वेश्चन मार्क के साथ रखा हुआ दैट की वो भी मतलब एक इंट्रोगेटिव है ना, एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले हमको चेक करना है, तो उसके लिए हमको क्या बोला हमने कि सेम क्वेश्चन जैसे हमने फोर्थ और फिफ्थ किया ना, एन की वैल्यू फाइंड आउट की, तो वही हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, अगर एन कोई नेचुरल नंबर आता है तो कन्फर्मली ये जो है 150 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एपी एज दिस विल नॉट बी द टर्म ऑफ ए। सो ए कितना होगा आपका 11, डी कितना होगा -3, एन आपको कंसीडर यहाँ हम कर रहे हैं -150, ओके, तो इसको आप लेट करके भी लिख सकते हैं और सपोज ये कंसीडर करके, तो आपके पास फॉर्मूला है -150 equals to 11 plus n we don't know, okay, transpose this, so 150 minus 11 equals to n minus 1 minus 3, okay, this will be -161 and okay n minus 1 minus 3. When you transpose -3 over here, so it will be -161 upon -3, minus will be cancelled and n minus 1. तो अभी आप यहाँ चेक करो जरा, if I just solve it further, n equals to 161 upon 3 plus 1. तो क्या ये 161 जो है ये completely divisible by 3 है? नहीं है, ठीक है, you will get the answer in fraction. 3 से आप डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स कैंसिल होगा, उसके बाद ये क्या होगा मीन्स 50 ओवरऑल आपके पास आएगा, उसके बाद ये क्या आने वाला है फ्रैक्शन में आने वाला है, एंड इफ इट इज नॉट if 3 is not dividing 161 completely, that means we will not be getting any natural number. तो यहाँ आपके पास n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं है, and if n is not belongs to natural number, that means this particular term is not included in AP, ठीक है, so you will write no 150 -150 is not the term of AP. Reason is because n is not any natural number for this particular term. Understood? Hope you have understood. क्या किया हमने, वही सिंपल जैसा हमको करना है वही किया हमने, ठीक है, जैसे हम n को फाइंड आउट करते हैं वही किया हमने, सिर्फ आपको n को ऑब्जर्व करना है, if 161 by 3 or anything, okay, it can be negative also, है ना, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये कई बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका कंसेप्ट वही है जो इसके पहले हमने क्वेश्चंस में यूज किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये न्यू चीज जो है इंक्लूड हो रही है, if n is not a natural number then the given particular term will not be included in AP, okay, so here is answer no, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी AP चेंज कर सकते हैं, कोई भी दूसरी टर्म ले सकते हैं, आप सिर्फ उसको जो है सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद देखें क्या n नेचुरल नंबर आ रहा है, if it is yes then this the term of given AP, and if it is not a natural number you can write no, this is not the term of AP. Okay, so one more question can we take? Okay. Last question, question 7. Question 7 is find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is, लिखते हैं given, लिखते हैं, ठीक है, given is 11th term is 38 and 16th term is 73 and we need to find out A31, okay, अब इसको जरा समझो, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे तब हमने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर टू वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हो तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये वही अगर आप याद करो तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 5th पार्ट में या 2nd पार्ट में ऐसी भी कंडीशन देखी हुई थी, है ना,
इस टाइप की कंडीशन हमको वहाँ मिल गई। तो सेम है ये, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है। सिर्फ इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी कि हमको ए और डी निकालने के बाद 31st टर्म निकालना, ठीक है। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 10b इक्वल्स टू 13, ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। A16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15b इक्वल्स टू 73, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आएंगे -5b इक्वल्स टू -35, ओके। माइनस माइनस कैंसिल and it will be cancelled how many times, 7 times, so b equals to आपके पास आ गया 7, ठीक। and after this if b is 7 you can put the value over here, कहीं पर भी आप एक जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अगर ये इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या पुट कर रहे हैं, b इक्वल्स टू 7, तो आपके पास होगा a प्लस 7 इंटू 10 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू आपके पास आएगा 38 माइनस 70, तो a इक्वल्स टू आपके पास आ गया हाउ मच, 22, ओके, isn't it? No, 32. Fine. So now if a equals to 32 we have, b equals to 7 we have, we want the value of what, a31, ये find out करना है, a31। अच्छा एक चीज और कि हम ये 38 में से 70 माइनस कर रहे हैं, तो 32 आपको कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लो क्या किया हमने, a11 को लिखा तो a11 मीन्स a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, a16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, सो इट विल बी माइनस का 5d आएगा और यहाँ माइनस का 35 आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है। माइनस माइनस भी आपको कैंसिल हो जाएगा। जब हमने डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप किया तो ये आया a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, 70 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये आया 38 माइनस 70, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस इट विल बी a इक्वल्स टू -32। नाउ a31 की बात कर रहे हैं, हमें a31 फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 30d, ओके। सो पुट द वैल्यू -32 प्लस 30 इंटू d कितना है 7, -32 प्लस, ओके, एंड द फर्दर वैल्यू इज यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन आपका प्लस का आएगा, क्योंकि ये क्या है, सो योर फाइनल आंसर विल बी 178, ठीक है। आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना था, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, a11 फाइंड आउट करना, a50 फाइंड आउट करना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास a और d की वैल्यू आएगी, ठीक है। a और सॉरी d और a की वैल्यू आएगी, जैसे ही आती है तो a31 क्योंकि आंसर होगा, तो a31 मीन्स क्या होगा, a प्लस 30d, ठीक है। तो a भी आपके पास है, d भी आपके पास है, आप दोनों वैल्यू पुट अप करें और दोनों वैल्यू पुट अप करने के बाद जो है आंसर निकालें, एंड 178 विल बी द आंसर। बट आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स प्लीज डू होमवर्क रेगुलरली, ठीक है। आप जो होमवर्क है वो कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं है कि बार बार जो है हम आपके क्वेश्चन अगर हमने आपको दिया होमवर्क में एंड देन यू आर आस्किंग आई विल बी सॉल्विंग, ओके, क्योंकि आपको थोड़ा सा जो है मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हर एक क्वेश्चन हर एक पार्ट इफ आई विल बी सॉल्विंग व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो आप पे क्या करोगे वहाँ पर। तो आज भी होमवर्क दें कि आप ट्राई करना, चलो एग्जाम्पल देते हैं, बिकॉज होमवर्क इज कंपल्सरी। तो आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इज थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल। योर होमवर्क इज प्लीज नोट इट डाउन, एग्जाम्पल थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको होमवर्क में है, ये आपको सॉल्व करना है, ओके।
So it's sufficient for today. And next 3-4 questions we'll take tomorrow. Okay.